میری یہ خواہش تھی کہ ان سادات کرام کو جمع کر کے صرف ہم لوگ واضح و نصیحت کر کے نکلنے جائیں گے. کئی قادری آئے ہیں، ان کے بھی کیا خدمات ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو صرف سبا قادری سے 70 حاجی قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں کہاں جانا. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو کلک کرو. میں چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. میں سادات کرام کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ خطب دکن شہنشاہ دکن کے جانشین و سجادہ نشین سید علی حسینی پاشا صاحب قبلہ داماد البرکاتہ خود سے آئے تھے اور ہمارے درمیان میں جیسے 11 غوث پاک کی اولادوں کا آپ تذکرہ کر رہے تھے. میں ٹوٹل 22 غوث پاک کی خانقاہوں کی تلاش کیا اس درمیان میں. یہ کانفرنس کی تحقیق کرنے کے لیے میں تقریباً 22 خانقاہوں کو کانٹیکٹ کیا اور صرف اس میں یہ کمی رہی کہ ہم لوگ جو ہے یہ اس کے درمیان میں کانفرنس کرنے والے تھے. تو ہمارے شہر کے ایم ایل اے جو پرساد ابیا تھے تو ان کا اصرار تھا کہ میں اتنی بڑی کانفرنس کر رہا ہوں، میں اس میں چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کو لاتا ہوں. اب میں اس کا انکار نہیں کر سکا، میں اس کا قائل نہیں تھا ان کو لانے کے، مگر ان کا اصرار ایسا تھا کہ پرساد ابیا جی کا کہ بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے میں ایم ایل اے بناؤں. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وہ آئے تھے کسی دوسرے کام سے، ہمارے مانے صاحب آئے تھے، ایم ایل سی بنے تھے، تو ان کو گلپشی ہو رہی تھی. ہمارے ابا بولے کہ پیر صاحب ان کی گلپشی کریں گے، مگر ایسا موقع ہوا کہ گلپشی ان کی کرتے کرتے میرے والد صاحب فرمائے اس کے لیے میں کھار لا. بولے میں کھار لایا، پرانا گھر پہ تھا وہاں لایا دیا تو بولے اسے ڈالی نہیں ایم ایل اے ہوتا. بولے جبکہ ہمارے پیر مرشد کی مزاج نہیں تھی، یعنی ایسے باتیں انہیں یہ ہوتا انہیں وہ ہوتا، ایسے باتیں کرنے والے نہیں تھے. پتہ نہیں اس دن کیا طبیعت مزاج ہوئی، یہ بولے تو 3 مہینے میں حضرت کا وصال ہو گیا. اور عجیب معاملہ تھا. تو پرساد ابیا کی بڑی ضد تھی کہ میں ان کو لاؤں، تو اس مجبوری میں جو ہے ساداتوں سے میری گستاخی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں. اور کیونکہ میں جو آج خاص کر کے نشست اس لیے بلایا تھا کہ ہمارے شہر کرناٹک کے لوگوں کو پتہ نہیں، صرف ایک کیسر مرو بولے تو ہمارے مومن بادشاہ کی اولاد معلوم ہے، ہمارے چودھری صاحب بیٹے ان کو ایک بارے معلوم ہے، شاہ خمیس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں علاؤدین شاہ قادری بنکاپور ان کے بارے میں جانتے ہیں. اب کوئی نہیں جانتا کہ انکولے میں سید فتح اللہ قادری ہے، کرکندہ شریف شاہپور کے پاس وہاں سید فتح اللہ قادری ہے، علن شریف میں سید عظمت اللہ قادری لاڈلے مشائخ ہیں، تار پتری میں سید یاسین ولی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ایسے کئی خاندانیں کے اولادیں جو ہیں تمل ناڈو میں بھی ہیں، ونمباڑی میں بھی غوث پاک کے خاندان کی اولادیں ہیں. ایسے کئی جگہ خاندانوں کی اولادیں ہیں جو ہم لوگ کامن جانتے ہیں، جو ایک دوسرے خاندان سادات کرام. حضرت عبداللطیف لاہوری کرنول کو کون نہیں جانتا، حضرت اسحاق ثناء اللہ کو کون نہیں جانتا، حضرت سید رفیع الدین قادری بغدادی کو کون نہیں جانتا، حضرت معشوق البحر ورنگل کو کون نہیں جانتا، حضرت سید عبدالرزاق قادری بیجاپوری کو کون نہیں جاتا، حضرت سید قاسم قادری کو، سید ابو الحسن قادری، سید مصطفیٰ قادری، سید موسیٰ قادری، سید مصطفیٰ قادری، سید یوسف الحاجم الحرمین کو کون نہیں جاتا، سید حیدر ولی اللہ نیل اللہ، سید اسماعیل شاہ قادری نیلور شریف، حضرت سید تمہارے بدر عالم حبیب قادری بیدر شریف، اور سید اپنے حیدر ولی اللہ کی اولادوں میں سید درویش قادری ہے، سید نور اللہ قادری ہے. کئی اولادیں، ہر بزرگوں کی اولادیں جو ہے کئی جگہ پھیل گئی ہے. میری یہ خواہش تھی کہ ان سادات کرام کو جمع کر کے صرف ہم لوگ واضح و نصیحت کر کے نکلنے جائیں گے، کیونکہ ہمارے غوث پاک کی اولادوں کی تاریخ کی کتاب پوری مکمل طور پر نہیں ملتی. صرف سبا قادری کا جیسا ہمارے شہزادے سید عبداللطیف لاہوری، سید عارف پاشا قادری صاحب قبلہ نے جیسا فرمائی سجادہ نشین نے کہ صرف سبا قادری کا ہی ذکر نہیں ہوتا، 7 قادری. تو 7 قادری کے حق کے بھی کئی قادری آئے ہیں، ان کے بھی کیا خدمات ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو صرف سبا قادری. ابھی سبا قادری کے بعد بھی آئے نا، اب جیسے چپگری کے خاندان آئے سید 70 حاجی قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں کہاں جانا. خالی سبا ہے تو بھی باقی کا
अदा है तो आगे भी है तो आगे की कादरियों को क्या करना हमें, हशर क्या होगा हमारा? नहीं साहब, वो आप लोगों का ताउन हुआ तो जरूर जरूर। तो मकसद ही मेरा वो है कि आप जितने शहजादगाने गौसे पाक आए हैं, ये आने में ये दो आ नहीं सके कुछ मसरूफियात की वजह से, जैसे कि सैयद अब्दाल कादरी साहब किबला जो बनगनपल्ली के साहब हैं, वो मुनाजरे की वजह से बम्बई में रुक गए। वहाँ अहले हदीसिया वहाबियों के साथ मुनाजरा था, वो मुनाजरे की डेट आज फिक्स थी। अल्लाह का करम है, मेरे हबीब का करम, गौसे पाक का करम है कि सामने वाला मुखालिफ है तो पीछे हट गया। आज अहले सुन्नत वल जमात की बड़ी जीत हुई बम्बई में। सुभान अल्लाह। हजरत सैयद अब्दुल लतीफ सैयद अब्दाल कादरी साहब जो है बनगनपल्ली के, उनके जद्दे अमजद जो है सैयद फतहुल्लाह कादरी कुरकुंदा शरीफ है। तो बहरहाल जितने गौसे पाक की औलादियां जिनसे मुखातिब हो और जो आने वाले मैं नहीं आए उनसे भी मैं इंशाल्लाह जरूर मिलूंगा। मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि आप अपने जद्दे अमजद की तारीख मकाला लिख के दे। जितने गौसे पाक की औलाद दक्कन में है उनका एक एक मकाला लेके किताब बन जाती है, आसानी से पूरे गौसे पाक का तारुफ हो जाएगा। दक्कन में जितने गौसे पाक की औलादे हैं, मैं चाहता हूं कि अगले साल कॉन्फ्रेंस होगी, मगर ये कॉन्फ्रेंस उसमें सियासी लोगों को नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में बात बढ़ती क्या हुआ पीरा ला को जैसे मखसूस सादात को बेटे बाकी के नीचे बेटा जाग छोड़े कर। मेरी मजबूरी थी कि नहीं तो वो नहीं आने वाले थे, 25 लोगों का परमिशन पास दिए। ये मेरी मजबूरी में क्या हो, ना कि मैं किसी सैयदजादे का दिल दुखाना, ये मेरी तबीयत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने और आपके बुजुर्गों में ये मोहब्बत थी कि हमारे पीर व मुर्शिद कहा करते थे, कहीं भी किसी सिलसिले के मुरीदों में पीरों में झगड़ा कर्नाटक में नहीं, ये बीमारी बाहर की है, इनके झगड़े हमारे दरमियान में है। हमारा किसी पीर के खानदान से कहीं भी झगड़ा नहीं है, न हाशम पीर के मुरीदा बादशाह पीरा के मुरीदा से झगड़ रहे, न चिमगिरी की पीरा हमारे मुरीदा से झगड़ रहे, कभी नूर दरिया का खानदान किसी दूसरे खानदान से नहीं झगड़ रहा। अगर झगड़ा है हर घर में झगड़ा रहता, किसके घर में झगड़ा नहीं? झगड़ा रहा तो 600 होने वाला क्या भी है, तो झगड़ा नहीं रहा तो फलने वाला फूलने वाला नहीं। आदम से झगड़ा शुरू हुआ, हवा हाबिल और काबिल का मर्डर हो गया। दुनिया जो शुरू हुई मर्डर से शुरू हुई, ये क्या बड़ा मामला है? हमें झगड़ रही है आज, नहीं तो कल सेटलमेंट कर लेते। मगर तुम्हें हमारे बारे में क्यों परेशान हो रहे? परेशान हम इस बात का होना है कि हमारे गौसे पाक की औलादे दक्कन में कहाँ है, उनको जमा करने की मैं ख्वाहिश करता हूँ। दूसरी मेरी कोई जाती मुफाद के लिए नहीं है। मेरा खानदान अपने लिए अपनी जगह पहचान वाला, इस इलाके में हमारे बाप दादा काम करे, आपके इलाके में आपके बाप दादा काम करे। आपके बाप दादा जो काम करे, वो जो अहले सुन्नत वल जमात को जो ताकत मिली, वो किसी के बाप दादा में ताकत थी कि वो आज काम कर सके। शहजादे गौसे आजम जब पहली मरतबा जब मैं 35 साल पहले हुगली में मेरे दादा हजरत के उर्स में बुलाया था, तब हजरत तकरीर करते बोले कि बादशाह पीरा का खानदान का रिश्ता 400 साल खानदान का रिश्ता है हमारे खानदान से। तो तब मुझे एहसास हुआ, अरे शहजादे गौसे आजम जब ये बात बोल रहे तो क्या तो भी हमारे खानदान का कनेक्शन है। तो मैं आना जाना शुरू किया हजरत की खिदमत में। मुझे देखा तो डर महसूस होता, मगर जब उन्होंने बाजू बिठाते ऐसी उल्फत इतनी मोहब्बत, मैं उसका समझे नहीं घबराते। हजरत के पास बैठने को मैं खुद भी घबराता, मगर ऐसी मोहब्बत करते कि मुझे मेरी घबराहट खुद में खुद खत्म हो जाती उनके पास बैठे। बहरहाल जितने भी सादाते किराम है लायक ताज़ीम है, उनका हर घर का बच्चा छोटा बच्चा पहले दिन पैदा हुआ है, मैं उसकी ताज़ीम करूंगा, उसके जूतिया सर पर होकर ढकूंगा। गैर सैयद को मानो बोले तो मैं नहीं मान सकूंगा। मैं सैयदजादे के घर के पहले दिन पैदा हुए तो बच्चे के जूतिया सर पर हो, तो अल्लाह के रसूल का फरमान है, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरी अहले बैत है। जो कुरान को समझना है तो अहले बैत को पकड़ना पड़ेगा, अहले बैत को समझना है तो कुरान को पकड़ना पड़ेगा। अब मैं क्या करना, मैं भी नबी का उम्मती हूँ, सैयद बाद में हूँ। मेरी ये तबीयत है कि हमारे पीर ने ये बताया, तो सैयदों का अदब करना सीख, बड़ों का अदब करना सीख, बच्चों से शफकत करना सीख। ये हमारे पीर मुर्शिद के तालीमात थे। और मेरा नजरिया मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये गलत मैसेज ना जाए कि भाई सियासी लोग आए थे हमने बिठाए नीचे, ऐसा नहीं कि मैं बड़े बड़े बारगाह सज्जादों को बिठाया और कई सज्जादगान बड़े बड़े बारगाह के थे, मुझे
अंदर से अक्सर दिल में ये रो रहा था, अब मजबूरी थी, मैं बर्दाश्त किया हूँ। मैं आपसे माजूरत चाहता हूँ, आप गलत ना तस्वर करें। आने वाले सालों में मेरे पीर मुर्शिद की उसमें करूंगा, उसमें सियासी लोगों को नहीं बुलाता, उनका प्रोटोकॉल देखे तो हमारा प्रोटोकॉल खराब हुआ। हमारा प्रोटोकॉल सब में बड़ा हाई प्रोटोकॉल को लो प्रोटोकॉल कर दिया हमें आज। मुझे खुद को शर्मिंदगी हो रही है। आने वाले साल में इमाम हुसैन की औलाद दक्कन में कितनी है मैं उनको जमा करूंगा, और हसनी सादात उस वक्त साथ देंगे ताकि अली का नाम अगर जगाना है तो हसन और हुसैन की औलाद। सैयदों की कितनी औलादा है, 2-3 किस्म के सैयदा है, एक हसनी सैयद है, एक हुसैनी सैयद है, एक अलवी सैयद है। अब एक चौथा सैयद कहां से आवा? ये चौथा सैयद कौन है? अब हमना पता चलता कि इन्हें तो सैयद है, इन्हें तो नया सैयद है, मगर हमें उसे सैयद होते देखा है। सैयद है इन्हें, ये दावा कर रहा तो मैं मानना पड़ेगा नहीं। इनका बाबा ने बोला, अभी नहीं बोल रहा, इसके बाबा की जगह सैयद लगता, इन्हें पौवा पड़ता था, नीचे बैठता था, खतमा दबाता था, क्या क्या करता था इसका बाबा दिखने में, मगर इन्हीं सैयद हुआ। तो हमने तो माना कि तुम तो सैयद हो, मगर तुम तो होते हुए देखा है, तुम्हें तो होते हुए सैयद को देखा है। ऐसे सैयदा है हमारे इलाके की अहले बैत की, जो धारवाड़ कर्नाटक में पुराना धारवाड़ जिला ऐसा है जहाँ अहले बैत की बड़ी मोहब्बत करते हैं। अहले बैत की ऐसी मोहब्बत, कौन भी बोला मैं सैयद का पहले पावा पकड़े, हरी टोपी, पीली टोपी, लाल, इसे संबंधित में तहकीक करता रहे। आल चाचा को बार बार आला हजरत को परेशान करते। आला हजरत फाजिल वली रहमतुल्लाह अलैह बोले कि अगर कोई बोला सैयद है तो उसकी ताजीम करो। अरे कहाँ नहीं बोल रहे भाई, कोई तो ब्याह हमना एक आदमी बोला कि मैं परेशान हो गए तो मदद के लिए खड़े हो जाते। तो फाजिल बरेली का फतवा सर आंखों पे, आगे जाकर फाजिल बरेली के और फतवे को की चेक करते नहीं। पता चला कि अगर उन्हें गैर सैयद है तो उसके बारे में ऐलान करो करके हुक्म है फाजिल बरेली के फतवे में। पता चला कि नहीं डुप्लीकेट है तो उसे ऐलान करना पड़ेगा कि तू डुप्लीकेट है। तो हमारे इलाके में जो सादात है, जो सादात नहीं, हमने पूरा पता है। हमारे बाप दादा एक भुट्टी पिला को छोड़े धारवाड़ जिले में करते हैं। एक मोमिन बादशाह खादरी केसर मोरेगा घराना, एक चीफ गिरी के सैयद उषा खादी साहब बैठे, हमारे साहेब जावेद लतीफिया के फारिग है साहेब का खानदान, एक तेग बराना सैयद हिसामुद्दीन का खानदान, एक सैयद अबुल हसन खादरी बिजापुरी का खानदान धारवाड़ में है, एक सैयद हाफिज हुसैन हमजा हुसैनी बिजापुरी का खानदान। 5 या 6 खानदान हमारे दरमियान में है। एक अंगोला के फतहुल्लाह खादरी का खानदान। 6-7 खानदानों से ज्यादा कोई सादात की ना तहकीक है ना कोई डॉक्यूमेंट मिलता। एक अलाउद्दीन चकादी शाह खुमेस की औलाद से है। तो बहरहाल मैं आप सादात के दरमियान में क्यों रख लो भाई, हमारा क्या है, किसी क्या जाती दुश्मनी का ठेका थोड़ी ले तो है। लेकिन जो आदमी बोले उन्हें आजाद को उसका मुस्तकबिल था, अपने बाप दादा की नस्ल को चेंज करता है नहीं। और मैं गुजारिश करता हूँ सादात कराम से, हसनी हो, हुसैनी हो या अलवी सादात हो, आप लोग एक दूसरे सादात से मोहब्बत करें। हमारे इख्तिलाफ अपनी जगह, क्या तुम्हें पर्सनल झगड़ा है तो हम तुम्हें उसे बैठ कर इस्लाह करेंगे, मगर जहां नसब का मामला आता है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सालगिरह हजरत उस्मान गनी को दिए, ये किसे मालूम नहीं क्या? जुल्नुरैन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सरकार को जब 2 बेटा दिए, उनकी औलाद सैयद नहीं हो रही। आज के लोगों की सैयद हो रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला को सैयद नहीं बोल रहे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला को सैयद नहीं बोलते, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु को सैयद नहीं बोल रहे। हजरत अली सैयद है, मगर सैयदना इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने फातिमी औलाद नहीं है। उन्होंने फातिमा तो रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने माँ है, एक बीवी है, इसलिए बाप और बीवी हजरत अली और फातिमा, हसन और हुसैन और नबी, ये पंजतरे पाक है। तो नबी अली को सैयद भी लगा सकते, सैयदना भी लगा सकते, मगर सैयदना इसलिए लगाते हैं कि आप कहीं कंफ्यूज ना करें कि फातिमी बात आ जाए तो फातिमी सैयद के लिए सैयद लगाया जाता है। अगर कोई बड़ा मुकाम वाला होता है तो उसे सैयदना लगाया जाता है। आज जो है बहरहाल मैं बहुत बात तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा, मेरे जनरल ख्याल बोलो भाई, मैं आलिम गिली कर फतवा ठोकेंगे तुम्हें,
मैं पहले तौबा इस्तगफार पढ़ता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल इज्जत मैं अगले साल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने की, क्योंकि मेरे दिमाग में बात है हम दो मुखरिब को बुला के खर्चा करते हैं और जरा ज्यादा खर्चा करेंगे तो सब चेहरे देखेंगे, तीन नूरानी चेहरे हमारा कब दिखना उगली में फिर गया। तेल लेकर आपको मैं दिखाना अगर वो मेरे दिल में ख्वाहिश थी, मैं अल्लाह का फजल है आज चेहरे अपने देख रहे और चेहरे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे। तमाम मैं हसनी सादात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हुसैनी सादात का भी आप लाए। मैं अली पाशा साहब का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि साहब की तबीयत खराब थी, हमारे लिए नो बाय प्लेन गोवा जाके यहाँ तक आए और शब्बर पाशा खुद गाड़ी चलाते, मुझे सब रिपोर्ट मिल रही कौन कैसा आ रहे। अली पाशा साहब उमरा जा रहे थे, बंगाल के सज्जाद रशीद साहिबाजी जो है जब उमरा जा रहे थे, उन्होंने उमरा का प्रोग्राम है तो मुलतवी कर को आगे डाल को टिकट कैंसिल करा को कॉन्फ्रेंस के लिए आए। नहीं मोहब्बत नहीं कहा साहब क्या कैप्टन के बाद सिलेक्शन कमेटी तुम्हें असो सिलेक्शन कमेटी बैठी कैप्टन बने। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे क्या भी तुम्हें मुझे मदद क्या करना, पैसों की जरूरत नहीं है।